Hello, children. Good morning. Welcome in today's science revision class. You all are preparing for annual examination? Yes, of course. I know you all are preparing. And the questions will come. What type? Take the correct option. So you have to read each and every line from anywhere questions can be formed. Today I will share some book pages. I will try to make more and more questions on that topic and tell the answers. After that, we will solve the worksheet together. Okay, children. Very first, I am sharing the PDF of book pages. Let's read one by one. Yes, the name of the lesson is lesson number 11, work, force, work and energy. Children, what is force? A push or pull is called force. I have already told you. All the people pushing or pulling the correct, tick the correct. इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? कौन पुशिंग कर रहा है, कौन पुलिंग कर रहा है? बोथ आर फोर्स. देखो, हियर द बॉय, ये द मैन इज पुशिंग. ये क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं ना ट्रॉली को. एंड हियर द वुमन इज पुलिंग. एंड हियर ऑल्सो द वेंडर इज द this man is pushing. Okay, this type of pushing and pulling is known as force. Children, what the act of pushing and pulling is called force. In this picture, the boy is pulling the drawer. In this picture, the boy is pushing the drawer. Children, the act of pushing and pulling is called force. If it is asked, answer in one word, what is called the act of pushing and pulling, then you will answer the force. Okay, children. And children, what are the effect of force? Force क्या क्या करता है? In this picture you can see force can move an object. इसने तेज से इसको पुश किया, बॉल मूव कर गई. Force can stop a moving object. एक बॉल आ रही है, इसको हाथ में कैच करके इसने मूविंग फोर्स कैसे लगा के क्या किया? स्टॉप कर दिया. बॉल मूविंग ऑब्जेक्ट थी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. या देख लो, ये शटल कॉक का इसने ये इस रैकेट से क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया. शटल कॉक इस डायरेक्शन में आ रही थी, इसने वापस इसको किस डायरेक्शन में भेज दिया? ऑपोजिट में. तो व्हाट वी कैन से that force can move an object, force can stop a moving object, force can change the direction of an object. Now children, see this picture very carefully. Force can change the shape and size of object. He is using the clays and changing its shapes by this act of force. और क्या कर रहा है? देखो, इसके shape और size को बदल दिया. What is going on in this picture? The man is does this picture shows? If the exam, the question will come, any of the pictures can become, it can be asked, what does this picture show? That force can change the shape and size of an object. In this picture, the force can change the direction of an object. In this picture, the force can stop a moving object. In this picture, what is going on? The force can move a resting object. Yes. Now, types of forces क्या क्या होते हैं children? There are different types of forces. Gravitational force, and it is called as gravity. Frictional force, it is called as friction. Magnetic force and electrostatic force. Children, plants, animals, building, water, air, सब कुछ अर्थ पे पड़ी हुई क्यों है? It's lying. Why? Because earth has a force. That is gravitational force. अर्थ हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. That is called gravitational force. That's why we are standing. हम लोग, ये बिल्डिंग खड़ी है अर्थ पे, एनिमल प्लांट सब लोग अर्थ पे हैं. क्यों? क्योंकि फोर्स हमको, अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स से, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. Children, the ripe fruit from the tree falls onto the ground because of the gravity. एक एप्पल जब या मैंगो, कोई भी फ्रूट पकता है तो वो स्काई में नहीं जाता है, वो कहाँ पे गिरता है? लैंड पे गिरता है. क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी. क्योंकि लैंड उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से. दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि एप्पल क्यों जमीन पे गिरता है, क्यों नहीं हवा में जाता है, व्हाई वी आर स्टैंडिंग इन द अर्थ. ओके, तो यू कैन आंसर मी
आंसर दैट द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब कुछ होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर that earth pulls every object towards the earth. The force by which the earth pulls object is called gravitational force. What type of force you can see in this picture is applying? ये कौन सा force इसमें लग रहा है जिसकी वजह से बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई? बॉय ने तो एक फोर्स का डायरेक्शन, बॉल का डायरेक्शन चेंज करके उसको मूव करा दिया, मूव करा के स्काई में भेजा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट फॉल्स. क्यों फॉल्स करती है? Because the earth pulls the everything. And children, what you can see in this picture, this is a type of force, that is magnetic force. A magnet attracts things made of iron. Why? Because it is the force of due to magnetic force. And where it is used, magnetic force का use कहाँ होता है बेटा? Large magnetic forces are used in the case of the crane to lift heavy object made of iron and steel. जो आयरन और स्टील के भारी भारी क्रेन्स होते हैं उनको इस मैग्नेटिक फोर्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल इजीली मूव कराया जा सकता है. Yes, children, what is this? What you can see in this picture? Yes, we have done this activity. क्यों ये जो अब हम इस किसी चीज को रब करके जो एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करने से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन दिस पिक्चर विच फोर्स इज यू कैन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बिट्स ऑफ पेपर किसकी ओर इकट्ठा अट्रैक्ट हो रहे हैं? कॉम्ब की ओर हो रहे हैं. यू कैन आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आस्क, टेल मी ना. And children, what is work? Work is done when an object moves. हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, यदि वो चीज मूव कर गई तब तो वी कैन से द वर्क इज डन. और यदि मूव नहीं करी हमारे फोर्स एंड लगाने से तो वर्क इज नॉट डन. ओके, इन द बोथ पिक्चर किस पिक्चर में वर्क डन है? इस पिक्चर में. इन दिस पिक्चर नो, बिकॉज द थिंग इज नॉट मूविंग. And children, what is the energy? The capability of to do work. Na? Light, the different forms of energy is light energy, heat energy, electrical energy, sound energy, and atomic energy. Sound is also a kind of energy. When an object vibrates, is produced the sound and we can hear it. And children, the energy produced due to the breaking of atom. Everything is made up of small atoms. और इस एटम के ब्रेक होने से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक एनर्जी. यहाँ कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हियर विच एनर्जी इज प्रोड्यूस? हीट एनर्जी. सन कौन सी एनर्जी देता है? लाइट एनर्जी. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विंड. वाटर जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है, आप देखते हो तो हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. और विंड मिल से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? The energy, wind energy. And we can use this energy to do different types of work. जैसे विंड मिल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हाइड्रो एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. तो we can use in our day-to-day life. And what is gravity? The force by which earth attracts an object towards it is called gravity. And what is friction? The force acting between two surfaces and that are in contact due to friction. ठीक है, ये दोनों चीजों के बीच में. चिल्ड्रन, इफ आई एम, मैं एक मैच स्टिक जलाती हूँ, मैच स्टिक जल जाता है. क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन. अब मूविंग बॉल, कोई बॉल को आप मूव कराओ, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स. ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन. हम लोग चलते चलते रुक जाते हैं. वी कैन मूव ऑन अर्थ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से ही है. यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप कर जाते हैं, नहीं चल पाते ना. और मूविंग बॉल, आपने हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी ना, बॉल को दो सरफेस पे गिराया था, एक रफ पे और एक स्मूथ पे. हमने क्या देखा था? स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लेस था, इसलिए बॉल बहुत दूर तक चली गई. बट रफ सरफेस पे देयर इज फ्रिक्शन, सो बॉल स्टॉप हो गई. फ्रिक्शंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है. हम मैच स्टिक ऐसे करके जला लेते हैं तो क्या होता है? जो उसकी स्टिक होती है उसको मैच बॉक्स में रब करते हैं ना, रब करते हैं,
तो रब करने से क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन से हम इस तरीके से एनर्जी उसकी प्रोड्यूस करते हैं. Okay, children. Now let's read these things in short. A force is an act of pushing and pulling. Gravity, friction, magnetic force, electrostatic force. These are the different types of forces. You can see the picture and tell the what type of force is being used in this picture. Work is said to be done when an force applied on an object moved due to force applied. यहाँ क्या कह रहा है कि वर्क इज डन, वर्क को तभी डन माना जाता है जबकि हम फोर्स लगाएं और वो चीज मूव कर जाए. एंड व्हाट इज एनर्जी? Energy is the ability to do work. Heat energy, light energy, electrical energy are the different forms of energy. Solar energy also. And from where we can get energy? Sun, earth, water, wind, atom and fuels. These are the sources of energy. These are the sources of energy. It can be asked in many ways, huh? You have to. Yes, now the book exercise, the act of pulling or pushing is called force. An apple falls from a tree to the ground due to gravity. The force responsible for slowing down the movement of object in contact is frictional force. Frictional force की वजह से बॉल थोड़ी देर पे जाके रुक जाती है. These are the 4 act. इस तरीके से मैं कोई दूसरे एक्ट्स के भी पिक्चर दिखा सकती हूँ आपको, और आई कैन आस्क work is not done, या work in which picture work is done, or in which picture work is not done. आप बता लोगे ना? अब इसमें जरा बताओ तो. pulling a table, lifting a book, pulling a suitcase, reading. work is not done पूछा है. रीडिंग में हम वर्क तो करते हैं. आप विक्स के अरे हमने 3 पेज लर्न कर लिया, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज वर्क इज नॉट डन. क्यों? क्योंकि वर्क तभी डन होता है जबकि कोई चीज मूव होती है, और रीडिंग करने में कुछ मूव तो हुआ नहीं. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं. द इनर मोस्ट लेयर में लावा है, हॉट गैसेस हैं, मेटल्स हैं ना, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड geothermal energy. Now, frictional force is also known as friction. Energy is the ability to do work. Now, electrical energy is required to run a fan. Which type of energy is required to run a light? Of course, electrical energy. एसी चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कम. जरूरी नहीं कि यही वाले क्वेश्चन आए. एग्जांपल्स दूसरे दे के भी सेम क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है ना. एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन एटम. एटम के टूटने से आती है ना एटॉमिक एनर्जी. वुड, कोल एंड पेट्रोल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ fuels. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू सर्कल द ऑड वन आउट. ग्रेविटी, एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन. कौन सा ऑड वन है? ऑफ कोर्स एनर्जी. दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स, वर्क, एनर्जी, द सन. यस, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये ऑड वन है. साउंड, हीट, लाइट एंड फोर्स. हियर फोर्स इज ऑड वन. फैन, विंडमिल, टेलीविजन, बल्ब. दीज आर द, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, और विंडमिल क्या है? विंड एनर्जी से. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी नीडेड टू कुक फूड. फूड को कुक करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? हीट एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू सी द थिंग्स. लाइट एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन अ टेलीविजन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग एयर. मूविंग एयर से जो विंडमिल से एनर्जी निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? विंड एनर्जी. एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. Of course, geothermal energy, na? Children, can you identify this picture? This type of picture can be given in the question paper. तो आप पहचान लोगे ना कि कौन से एनर्जी के सोर्स है. ये कौन से एनर्जी का सोर्स है? विंड एनर्जी. दिस इज हाइड्रो एनर्जी. देखो यहाँ पावर से वाटर नीचे गिराया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी. ये कौन सा पिक्चर है? एटॉमिक एनर्जी. ये क्या है? सोलर पैनल्स है.
This is the picture of solar energy. I know you all can do such type of questions. Yes. Now let's do. What kind of force do you see in the following? चलो जरा इसको करते हैं. Okay, let's do. Okay, you have to answer. What you have to do, you have to answer it. हाँ, यहाँ पे आपको आंसर दिखना है. A ripe fruit falls down from a tree. एक ट्री से किस वजह से गिर जाता है बेटा? जरा जल्दी से बताओ तो. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल. यू विल राइट GRAVITATIONAL, gravitational force. FORCE. Yes. We are able to walk on the ground due to which force? किस फोर्स की वजह से हम लोग इस धरती पे चल पाते हैं अर्थ पे बेटा? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल. FRICTIONAL, frictional force. FORCE. The force help to light a matchstick. सेम चीज, फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सी फोर्स की वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मैचस्टिक जलती है ना. FRICTIONAL, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. यूजिंग दिस फोर्स क्रेन्स लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन. अभी मैंने बताया था दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. MAGNETIC, magnetic force. FORCE. Bits of paper gets pulled up towards the comb when it is rubbed through the air. ये वाला भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ELECTRO, electro, STATIC, electrostatic force. FORCE. Okay. Now children, this is the very easy. The following pictures are shown. What force can do? इसमें फोर्स क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई देम. राइट. व्हाट फोर्स कैन डू? इसमें क्या दिखा रहा है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. यही दिखा रहा है ना. देखो इसने बॉल को मूव किया. ये क्या दिखा रहा है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यही दिखा रहा है ना. इन दिस पिक्चर्स force can change the direction of an object. और यहाँ क्या दिखा रहा है? Force can change the shape of an object. यही दिखा रहा है ना. शेप बदल रहा है ना इस वाली पिक्चर में. This you all are able to do. अब देखो. Yes, here you have to write true or false. बताना है. Work is defined as the act of pushing and pulling. ये क्या है? एक्ट ऑफ पुशिंग पुलिंग होता है क्या? नो, इट इज फॉल्स. ये फोर्स होता है ना. वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज एबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. वेरी गुड, इट इज ट्रू. The energy that we get from the sun is called heat energy. It is false. It is called solar energy, na? The heat energy that we get from the innermost earth is called atomic energy. False. It is called geothermal energy, na? Atomic energy तो एटम के टूटने से बनती है. क्यों बेटा? Yes or no? Yes. I hope such type of questions you all can do. Yes, you can match this. यहाँ पे देखो
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ इसका साइज, देन यू विल बी एबल टू। हाँ अब देखो, व्हाट इज यूज टू पुश और पुल समथिंग, क्या कहलाएगा ये, इसको क्या कहेंगे हम, ऑफ कोर्स फोर्स, FORCE, फोर्स कहेंगे। नाउ व्हाट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, अपनी तरफ जो अर्थ किसी चीज को खींचती है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटी, वे GRAVITY, gravity. What is the force by which magnet attracts objects made of iron? इसको अभी मैंने कराया था, मैग्नेटिक फोर्स, MAG, magnetic, NETIC, magnetic. What is the energy produced when an atoms break down? तो क्या बनता है, atomic energy, ATOMIC, एटॉमिक एनर्जी का मैं केवल ई लिख दे रही हूँ, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ENERGY। चलो, व्हाट इज द हीट एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सबको पता है, जियोथर्मल एनर्जी, GEOTHERMAL, जियोथर्मल एनर्जी। चिल्ड्रन आप इन पिक्चर्स को देख के बता दोगे, दिस इज, यहाँ कौन सी एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, दिस इज लाइट एनर्जी, दिस इज साउंड एनर्जी, दिस इज हीट एनर्जी। Yes, I know you all are able to do such type of questions. So children, again I am telling, then read each and every line of the chapter. Any experiment or diagram can be shown and questions can be formed on that to try to understand कि what is being done in this pictures, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, आप सबको पहचानने की जरूरत होगी और बताने की, जैसे बुक में देखते हो आप लोग, these are, ये दो, इसमें कौन सा एनर्जी है, यू हैव टू टेल दिस, ये कौन सा एनर्जी का पिक्चर है आपको बताना है, ठीक है, यदि इस तरीके का कोई भी पिक्चर आ गया तो, ठीक है, एंड दिस इज, ये फोर्स क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, पुल कर रहा है, चेंज द शेप कर रहा है और चेंज द डायरेक्शन कर रहा है, दिस एक्टिविटी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कि फ्रैक्शन किस पे ज्यादा होता है, किस पे कम होता है, और कौन से एक्ट में वर्क हो रहा है, कौन से में एक्ट नहीं, वर्क नहीं हो रहा है, व्हाट इज पुशिंग, व्हाट इज पुलिंग, लाइक दैट एनी क्वेश्चंस कैन कम। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू read each and every line. Okay children, meet you soon in the next class, and children I will share these worksheet on your Edonex app on annual revision chapter, annual syllabus and worksheet वाले chapter में आपको वहां पे मिल जाएगा ये content में। Okay children, meet you soon in the next class. Bye bye dear.